अब पता नहीं मुझे ये मतलब फिगर्स रिवील करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेट्स नॉट रिवील द फिगर। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जितना इंसेंटिव मेरे कलीग्स लोगों ने जनरेट किया है, उतने तो मेरे मैनेजर की भी सैलरी नहीं है वहां पर। बैक एंड क्लोजर ने आपको क्या हेल्प करी है आपके बीपीओ में ग्रो करने के लिए? कुछ नई चीजें आपने बैक एंड क्लोजर से सीखी है जो आपने बीपीओ में भी यूज करी है? अरे एब्सोल्युटली। अब तो वहां पे कॉन्फिडेंटली जा रहा हूँ, कल जॉब छोड़ना छोड़ दूंगा। Hi guys, welcome to another case study of Backend Closers where we are meeting today hashtag seller F of our Backend Closers sales team. We are having Shahid Ansari with us. He is working in BPO currently and part-time in Backend Closer. And he have generated more than 2 lakhs of revenue in just 2 months of time by working at least 2 to 3 hours per day or less than that too. So let's know how he's working, maintaining his working professional life and back end closes part-time working, and how Shahid is able to generate good revenue by spending less time, and what is the reason that even if he is working in good BPO, is working in BCC, and how he's scaling, how he's working on his skill set. So hi Shahid, how are you doing? Oh, well, absolutely great. I'm really excited to be part of this case study. Thank you so much for inviting me. We are excited to know more about your journey and how you are doing the same. So, Shahid, let us know what are you currently doing? Like, as you told me, you are working in BPO, right? How many hours you are devoting in your current organization, and what is the reason that you have joined BCC? Well, actually, as far as let me give you the information about my education qualification. I've done my engineering, and after that, I got a chance to work with Microsoft, and then I worked with Dell also, and currently I'm working with HP. So it's a Oh, BPO wherein we handle all the US and Canadian customers. So if they have any issues with their laptops, desktop, or any technical issues they're facing, so they used to call us, and we are the one who was providing all the services, end-to-end solutions to the US and Canadian clients. So working hours, like in a normal working hours are there, 9 hours of calling and everything, 3 hours of traveling, and all pure night shift I'm doing. that's amazing. Like, you are spending around 11 to 12 hours in your job only. And we have Right. 24 hours a day. Then how you are spending your time in back-end closes? Well, that's a kind of a regret right now, not able to spend more time in BCC, because I think this is the future. And coming from a BPO background, I know what exactly it is. I've not worked there, I am working there. So I know the current situation over there, how exactly it is. And to be honestly, the kind of money people are generating around me is more than the current salary which I am having over there. Okay. I got to know about it. So as you told me, like you have joined BCC, I think so more than it has been a 2 to 3 months only that you have joined BCC, right? So Right. what was the first reason and the first impression that you had? Like, okay, yes, I need to join the backend closers. Well, it's kind of you can say वो law of attraction होता है ना वो वाला। तो शाहरुख हाँ खान का जी। डायलॉग भी है ना, आपने किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो ऐसा कुछ हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। आप कोई भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको लाइक आई ऑल्सो फॉरगॉट इट। आई एम अ शाहरुख खान फैन एंड आई फॉरगॉट। ओके, होता है। तो वो ऐसे हुआ था एक्चुअली। एक 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 मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन किया था। तो उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप था, तो उसमें किसी ने एक जॉब पोस्टिंग किया था क्लोजर्स के लिए, सेल्स क्लोजर। ओके। और कुछ बड़ा सा अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन था, दिस 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 यू विल गेट 20 to 30% ऑफ रेवेन्यू, उसका आपको इंसेंटिव मिलेगा, और टिकट साइज भी 40,000 समथिंग था। तो मैं कैलकुलेट कर रहा था, अरे अरे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेट्स टॉक टू दिस गाय। उसको कॉल किया मैंने, एंड ही इज काइंड ऑफ टेकन माय इंटरव्यू ओवर देयर ओनली। ठीक है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? तो हम तो ठहरे भाई बीपीओ वाले, तो चालू हो गए वहां पे उसको बताने के लिए, ये करते हैं ऐसा करते हैं, मैंने सेल्स में माइक्रोसॉफ्ट में ये किया है, डेल में ये किया है, यहाँ तक मेरा ऐसा ऐसा रेवेन्यू है, वी हैव रेवेन्यू पार्ट ऑफ आस के आर ए, ये वो सब कुछ बता दिया कि भाई मैं इतना बड़ा सेल्स का क्लोजर
सेल्स पर्सन हूँ, ठीक है, और मैं वहां पे क्लोजर पार्ट पे मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था, ठीक है। एंड ही लिसन टू एवरीथिंग, आई थिंक वो स्मार्ट बंदा था। ही रियलाइज कि ये बंदा बातें ज्यादा करता है लेकिन ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि ये क्लोजर नहीं है। Okay. एक्चुअली आई वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली दैट क्लोजर पार्ट इज। फिर उसने खुल के मुझे बताया कि एक्चुअली कम्युनिकेशन वाइज एंड एवरीथिंग यू आर डैम गुड, आई एम रियली, I wanted to take you in, but right now we are looking for specific skill set कि भाई क्लोजिंग आना चाहिए। ऐसे क्लोजिंग तो अचानक से माइंड में वो डैनलॉग के वीडियोस आ गए जो 3-4 साल पहले देखे थे मैंने, कि क्लोजर क्या होते हैं। तो थोड़ा बहुत वहां पे मैंने इंटरव्यू में ही ब्लफ करने की कोशिश किया उनको बताने की, ये आई नो डैन क्लोज। तो डैनलॉग का नाम सुन के मतलब हाँ, मतलब मैं घुमा सकता हूँ बात को, वो तो समझ में आ गया उनको। कि बोला कि राइट नाउ आई कैन नॉट हायर यू राइट नाउ, but I want you to go through, I will give you certain kind of training, I'll give you a couple of videos, go through that and we will take the final interview next week। बोला ठीक है, उसने वीडियो दिया तो वीडियो में आप मिल गए मुझे, हिमांशु सर मिल गए मुझे, वो हमारा आपका कोई उन्होंने वो जूम मीट का रिकॉर्डिंग भेजा था मुझे जिसमें हिमांशु सर। We were doing. So how did you like our video? अरे दैट वाज अमेजिंग। वो वीडियो वैसा नहीं था, वो दैट वाज एक्चुअल ट्रेनिंग का था, हिमांशु सर का था, स्टार्टिंग वाला वीडियो था। Right. जिसमें सर ट्रेनिंग ले रहे हैं और सर ने पूरा मतलब वो 800 कॉल वाला जो जो बोला उन्होंने कि मेरे कंपटीशन में दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने कंपटीशन को ही तोड़ दिया, 800 कॉल ले लिया मैंने। तो आई नो इन एंड आउट ऑफ दैट एवरीथिंग। तो मैंने अरे माँ कसम, मैं रात भर कॉल करके वहां पे 800 कॉल तो नहीं ले रहा हूँ, बट स्टिल अगर कुछ, अगर मैं 800 कॉल ले भी लूंगा तो इंसेंटिव नहीं है मेरा, जो सैलरी है वही मिलने वाली है। आई विल नॉट बी गेटिंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट। तो वो वीडियो देखा, तो उसके बाद में जब हम लोग को पता चल गया मतलब हिमांशु सर हैं, तो वो उनका एक वीडियो तो मैंने देख के अलग रख दिया। देन आई वेंट अहेड एंड पूरा गूगल पे यूट्यूब पे सर्च मार दिया, तो पूरे मुझे तो पूरे वहां पे प्लेलिस्ट मिल गई, सेल्स की स्क्रिप्ट मिल गई, सब कुछ मिल गया वहां पे, सब कुछ एवरीथिंग। आई वाज लाइक ओके ओके, सब जब भी टाइम मिलता था आई वाज हुक्ड ऑन टू हिमांशु सर्स वीडियो एंड एवरीथिंग। पूरा देख के बाद में मैं समझ गया था। आई वाज, फिर उसमें एक वीडियो में कलाम का कोई केस स्टडी था, उसमें से एक सेंटेंस में मेरे को पता चला कि ये सर हायर भी करते हैं लोगों को। हाँ, तो आई वाज लाइक ओ हो, और क्या चाहिए मुझे। तो वो कलाम की वीडियो के बाद में मुझे चला, फिर मैं खाली वेट करने लगा कि सर का अभी कोई सा ऐड आएगा। तो ऐड आ रहे हैं, तो वो टाइम पे 6 फिगर्स टू वाला ऐड था और 2-3 प्रोडक्टिविटी वाले सुपर चार्ज वाला था, लेकिन बैकएंड का नहीं आ रहा था कुछ भी। तो मैं उन पे मैंने एनरोल कर लिया था, वो जो 99 रुपीज वाले थे जो भी थे, 3-4 महीने एनरोल कर लिए थे। फिर लाइव में चला गया, तो आई वाज लाइक जब वो बैकएंड नहीं आ रहा है तो मैं सोचता हूँ कि यही ज्वाइन कर लूं, कम से कम सर के सर्कल में तो रहूंगा। तो फिर अचानक से फिर एक दिन वो बीसीसी वाला भी आ गया, बैकएंड क्लोजर का भी। तो मैंने ओह और क्या चाहिए मुझे, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लिया मैंने। और वो उतना ड्रामेटिक, ये पार्ट ड्रामेटिक था, मतलब वो वाला ड्रामेटिक नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे फिर भी मैंने कहीं से अरेंज करके कोर्स में ज्वाइन किया। तो उतना नहीं था। like you wanted to learn, आपको सीखना था, आपको जानना था, इसलिए आप आए। that is a good part. So बैक एंड क्लोजर ज्वाइन करे हुए कितना टाइम हो चुका है, एंड पहले महीने कितनी इनकम थी, अब कितना कमा रहे हो, एंड एवरेज कितना टाइम देते हो, लाइक एज यू आर स्पेंडिंग अराउंड 12 hours इन योर जॉब, सो यू टोल्ड मी लाइक आप कितना पर वीक टाइम दे रहे हो बैक एंड क्लोजर में? तो टाइम से शुरू करते हैं। टाइम तो ज्यादा नहीं दे पा रहा हूँ कभी, मतलब समझो ना, ऑल्टरनेट डेज पे काम कर लेता हूँ, क्योंकि मतलब 9 hours 10 hours जब आप कॉलिंग करते हो ऑफिशियली, तो उसके बाद में आके यू आर नॉट लेफ्ट विथ मच ऑफ द एनर्जी। तो हफ्ते में समझो ना 2-3 घंटे ही निकाल पा रहा हूँ। मे बी नेक्स्ट मंथ से मेरा प्लानिंग है कुछ ज्यादा टाइम निकालने का, थोड़ा सा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स, राइट, ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। हाँ, और वो एफर्ट टू जो रिवॉर्ड रेशियो है मुझे यहाँ पर ज्यादा लग रहा है। और मैं अभी समझो ना, मतलब फुल वर्किंग किया है मैंने, 2 महीने काम किया है अभी तक बीसीसी में, और समवेयर अराउंड 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है। इतना कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट इट्स शुरुआत है ये। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा अर्न करूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो क्या होता है ना, कोई भी ये जो ऑनलाइन स्पेस है जो हमारे यहाँ अभी चल रहा है, ये ऑनलाइन स्पेस में वर्क फ्रॉम होम, अर्न मनी, ये पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पे वही चल रहा है सिर्फ। लेकिन अब उसमें जब एक बंदा होता है जो यहाँ पे
कॉल के इस तरफ बैठा हुआ है जिसको कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन हो रहा है कि भाई ये काम करता है या नहीं करता है। राइट। कोई भी कोर्स ज्वाइन क्यों नहीं करता है या वो कर लेता है, उसके वो अगर वो सेटिस्फाइड होता है, उसको कहीं पे भी लगता है ना कि भाई ये जेन्युइन है, ये थोड़ा सा ये मेरे को हेल्प कर पाएगा या मैं यहाँ पे कर लूंगा या ये मैं नहीं कर पाऊंगा, दैट्स व्हाई दे डोंट ज्वाइन। तो पहला हर्डल तो हिमांशु सर से ही दूर हो गया था, नहीं भाई ये बंदे के साथ तो काम करना ही है। तो मैं तो अंदर आ गया। अभी सेकंड पॉइंट होता है कि अंदर आने के बाद में कि आपके लिए कुछ मतलब आपकी टीम है या जो भी है वो लोग अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को वो भी वैलिडेशन मिल चुका है कि भाई मेरी टीम बहुत अच्छा कर रही है मेरे से। तो अभी थर्ड वैलिडेशन ये तो मेरे लिए जो था कि भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्या है ना, मैं जो बीपीयू से हम लोग आ रहे हैं ना, जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे वी हैव टू एक्चुअली हमारा जो परफॉर्मेंस होता है वो सर्विस पे होता है। सो वेन एवर अ कस्टमर इज कॉलिंग अस एंड वी आर प्रोवाइडिंग देम द सर्विसेज, उसके बाद में एक ऑटोमेटिक सर्विस शूट हो जाता है कस्टमर को। नाउ द कस्टमर हैज टू रेट अस कि भाई उसके पास 10 क्वेश्चन जाएंगे, उसके अंदर उसको रेट करना पड़ेगा कि ये बंदा कैसा था, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा था, उसका टेक्निकल नॉलेज कैसा था, और जो उसने सोल्यूशन प्रोवाइड किया था वो लास्टिंग था या उसने ऐसी बेवकूफ बना दिया आपको। मतलब पूरा का पूरा डिटेल रहता है उसके अंदर। मतलब तुम ब्लफ नहीं कर सकते, वो सामने वाले के पास मौका है, वो आपको पूरा का पूरा नंगा कर सकता है उसमें कि भाई तू ऐसा था, तू ऐसा था, तू वैसा था। और समटाइम्स क्या होता है कि वैसा हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट वो परसेप्शन बना लेता है सामने वाला कि नो ही वाज नॉट हेल्पफुल, या उसके साथ कुछ और फ्रस्ट्रेशन हुआ रहता है। कैन यू इमेजिन जो उसका जो when he is calling, when the customer is calling you and the entire calls last for 1.5 hours, okay, and the worst part is he has to wait for somewhere around minimum बोलेंगे ना तो 20 minutes of hold time is there, hold time. He has to listen to that music ta na 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 for 20 minutes. Minimum of 20 minutes he is listening to that music. Sometimes तो कस्टमर बोलते थे भाई कुछ भी कर लो, ये म्यूजिक चेंज कर लो तुम लोग पहले। Right, we do agree. Like if we are calling any customer support, they are like dial 1, dial 2. Okay, we are connecting with our customer support. Yeah, sometimes it's quite irritating for like patience नहीं है ना आज के टाइम पे सबके पास। नहीं, पेशेंस भी नहीं है, प्लस वो तो फ्रस्ट्रेटिंग ही है। आप पे करके आए हो $160, ठीक है, प्लस आपको 20-25 मिनट आधा घंटा होल्ड पे रख दिया है, और उसके बाद में यू आर नॉट श्योर यू हैव रीच्ड द राइट डिपार्टमेंट और नॉट। Okay. And then you get a customer and they are shouting on you on a call. Absolutely, they're shouting like you bloody Indian and बांग्लादेशी मोरोन्स, उनको अभी नहीं पता नहीं कहाँ कॉल गया है, क्या हुआ है। और तो उसका फ्रस्ट्रेशन निकाल के उसके बाद में उसको सेटिस्फाई करना है, प्लस उससे सर्वे निकालना है अपने को कि भाई ये, और कैसा सर्वे पता है, 0 to 9 में उसको रेट करना है, और 7 नहीं आना चाहिए, 8 और 9 आएगा तो दैट विल बी काउंटेड ऑन फॉर अस। 7 आया तो वो हमारे काउंट करने का मतलब ही नहीं है उसका। सो इतना जबरदस्त सर्विस करने के बाद में भी अब आपका कुछ भी होगा, अगर आप 9 में से 7 दे रहे हो तो आप तो ओके है ना, आपके लिए, उसके लिए तो ओके था, भाई मैंने इतना 1.5 घंटा वेस्ट किया, 9 में से 7 दे दो। लेकिन नहीं, हमको चाहिए 8 और 9। तो उसके लिए वो हिसाब से मेहनत करके उसको कन्विंस करना है, उसको सर्विस देना है, प्लस उसको हैप्पी रखना है एट द एंड ऑफ द डे कि भाई आई एम द वन हु हैज हेल्प्ड यू, इवन दो द कंपनी वाज नॉट दैट गुड, उसने अच्छा म्यूजिक नहीं दिया तुमको, तो इवन आफ्टर दैट आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। तो इतना करने के बाद में भी, इतने मेहनत करने के बाद में भी, आपका जो रिवॉर्ड टू जो वर्किंग का रेशियो होता है वो बहुत वहां पे डिफिकल्ट है। और मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ कि आई एम नॉट एट ऑल वर्किंग टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ, जो हिसाब से मैं वहां काम कर रहा हूँ। तो जो यहाँ का मैं अगर इफ आई पुट इन मोर आवर्स, डेफिनेटली आई विल बी अर्निंग मोर। एंड ये मेरे लिए काइंड ऑफ वो हो गया है कि वो रहता है ना रिटायरमेंट वाला हिसाब किताब, यहाँ पे बैठ के खाली आराम करूंगा और कॉल उठाऊंगा। अभी थोड़ा पर्सनल लाइफ में कुछ पंगे चल रहे हैं, इसलिए मैं फुल टाइम अभी आ नहीं रहा हूँ, रैशनल डिसीजन नहीं ले रहा हूँ अभी, लेकिन अभी 1-2 महीने में मैं शिफ्ट कर लूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम। चलो, बहुत अच्छी बात है कि like you are thinking about changing your job and like जो आपने effort to reward ratio बताया, I totally agree. Like why do you think backend closer can provide you a good effort to reward ratio and why it's a retirement plan for you? Like क्या एक चीज जो backend closer आपको दे रही है अभी?
या दे सकती है? ये जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये पहली बात तो ऑनलाइन में वर्क फ्रॉम हो, ये जो है वर्क मेक मनी ऑनलाइन एंड एवरीथिंग, यहाँ पे इट इज वर्किंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, हाँ, आई नो कि इट इज वर्किंग. सेकेंडली, इट इज वर्किंग फॉर मी ऑल्सो. कमिंग फ्रॉम अ नेगेटिव माइंडसेट ऑफ इंटरनेशनल बीपीओ, वहां पे क्या रहता था पता है, कि जो इंडियन कस्टमर है ना, यूएस में सेटल है, जो कनाडा में है, वो मेरा माइंडसेट क्या, हमारे वहां का सबका माइंडसेट यही है कि इनको सेटिस्फाइड करना बहुत डिफिकल्ट है. तो उनसे जो सर्वे निकलता ही नहीं है. यू डू कुछ भी फ्री दे दो उनको, कुछ भी कर दो, नॉट नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल. तो उनको सर्वे गया तो हम लोग जो टिकट होता था ना, उसको भी क्लोज नहीं करते थे, और उसको ऑफिशियली 2-3 दिन होल्ड के रखते थे. भले गाली पड़ती थी मैनेजर्स की यहाँ वहां से कि भाई ये टिकट क्यों ओपन है, तो फिर उनको बाजू में लेके समझाना पड़ता था, इंडियन कस्टमर है, थोड़ा रुको, कभी कुछ इशू आया तो वी कैन गो एड एंड सॉल्व इट, रादर देन वो नेगेटिव सर्वे हो जाएगा. तो यहाँ पे तीनों तीनों जो चेकमार्क होते हैं ना, पैसे आ रहा है, सबके लिए वर्क कर रहा है, और इवन इट इज वर्किंग फॉर मी, क्योंकि मेरा नेगेटिव माइंडसेट है, उसके बावजूद भी ये मेरे लिए वर्क कर रहा है. तो जब मैं तीनों चीजों ठीक हो रही है, तो डेफिनेटली आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू विथ मोर टाइम, सो दैट वो जो रिटायरमेंट के लिए रहता है ना, आराम वाली जिंदगी, उतना एफर्ट नहीं है यहाँ पर. और जो बेस्ट पार्ट है कि यू कैन गेट ऑफ द टेबल, वहां का कॉल मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता. वहां बोल नहीं सकता सर ये हमारा, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, भले से वो गाली दे रहा हो या कुछ भी हाई टेम्पर में बात कर रहा हो, या वो हमारा इश्यू ही ना हो. यहाँ पे हम सेल्स में हैं तो हम बोल सकते हैं सर ये आपके लिए कॉल था, आप इसके लिए फिट नहीं हो, इट्स ओके, हम डिस्कनेक्ट करते हैं कॉल, आपको हम नहीं सेल करेंगे. ये मेरा जो पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में कॉल करते था 7-8 साल पहले, वहां का ये कॉन्सेप्ट था. हम लोग प्रोवाइड करते थे नीड बेस्ड ऑप्शन. तो हिमांशु सर का जब मैंने देखा कि भाई यहाँ पर यू कैन गेट ऑफ द कॉल, जब अगर सामने वाले को राइट फिट है ही नहीं, चिपकाना तो है नहीं, गंजे को कंगी नहीं बेचना है अपने को, अगर उसको रिक्वायरमेंट है, उसको जरूरत है, तो हमको उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, तेरा फ्यूचर क्या है वो बता सकते हैं. बट इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, देन व्हाई वी आर वेस्टिंग माय टाइम एंड हिज टाइम. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन where it will be fruitful for both of us. Great, agreed. And I would like to know that जैसे कि you are spending your time in BC, अभी तो बहुत कम है, in future you will be giving more time, but बैक एंड क्लोजर ने आपको क्या हेल्प करी है आपके बीपीओ में ग्रो करने के लिए? कुछ नई चीजें आपने बैक एंड क्लोजर से सीखी है जो आपने बीपीओ में भी यूज करी है? अरे एब्सोल्युटली, अब तो वहां पे कॉन्फिडेंटली जा रहा हूँ, कल जॉब छोड़ना है छोड़ दूंगा. That's great. लाइफ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. एक्चुअली क्या है, वहां पे बहुत डर डर के काम करते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैंने बताया ना, कुछ लोन है मेरा, तो आई डोंट वांट टू लूज आउट ऑन द जॉब. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आदमी डर के काम करता है वहां पे. हाँ भाई, कुछ पंगा नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी टू द दिस एंड दैट, एंड नाउ आई एम गोइंग कॉन्फिडेंट. कभी नहीं भी जाना तो फोन करके बोल देता हूँ सर मैं नहीं आ रहा हूँ. अदरवाइज पहले वो घुमा के कहानी बताना पड़ता था, भाई सर ये हो गया है, ये हो गया है, 5 झूठ बोलो, नानी को मारो, ऐसा करो, दुनिया भर की कहानी बनाओ. नाउ आई एम एक्चुअल रीजन, आज मन नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा हूँ. थैंक यू सो मच. That's a great thing. So if I'll ask you one thing, BPO versus back-end closers, okay? So क्या आप सिलेक्ट करोगे इन फ्यूचर, लाइक बीपीओ में जाना कंटिन्यू करना या बैक-एंड क्लोजर्स में फुल टाइम आना? फुल टाइम आना. बीपीओ में थोड़ी, बीपीओ में वो मजा नहीं है, पहले था अब नहीं है. बीसीसी इज लाइक तुम्हारे घर का बीपीओ हो गया है, तुम जाओ वहां पर थोड़ा सा अपने, अगर जिसको वर्क एथिक्स है, जैसे मेरा काम करना आता है, ये नए, कभी कभी जो नए बंदे रहते हैं ना, उनको अगर आप बोलोगे ना बीसीसी चूज करो, बीपीओ लोग बी2 चूज करेंगे, क्योंकि उनको अंदर का मालूम ही नहीं है. उनको बाहर की कांच की बिल्डिंग पता है, रात का एनवायरनमेंट पता है, वहां पे कैफेटेरिया है, वहां पे चिल्ला पुकार है, चिल्ड आउट है, एवरीथिंग वो दिखाई देता है सबको. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, द काइंड ऑफ हार्ड वर्क वी आर डूइंग ओवर देयर, इट्स इनसेन. और कंपेयर टू दैट बीसीसी इज नथिंग, प्लस उसका रिवॉर्ड ज्यादा है, प्लस सेल्स. अभी देखो, अभी हम लोग टेक्निकल में हैं, ठीक है, अब टेक्निकल में आप कितना सीखोगे? कल को कुछ नया आ जाता है, आपको नया कुछ सीखना है, कब तक सीखोगे आप? ठीक है, उसको आप कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ता है, और आपको उतना नॉलेज लेते रहना पड़ेगा. एक बार आप सेल्स सीख गए ना, आप खाली वो सेल्स को ही अपग्रेड करते रहो, उस स्किल को अपग्रेड करते रहो. हर एक कंपनी को सेल्स की जरूरत है.
जितनी Right. इकोनॉमी फ्लरिशिंग हो रही है, जितनी नई नई कंपनियां आ रही हैं, उनको कोडर्स मिल जाएंगे, उनको सब कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट सब दे रहे हैं उनको। सिर्फ क्लोजर नहीं मिल रहे हैं, क्लोजर बीसीसी दे रहा है। I like that कि क्लोजर बीसीसी दे रहा है, एंड इन फ्यूचर लाइक जितने भी बड़े हैं, आई विल बी क्रिएटिंग अ गुड प्लेस कि जहाँ पे सारे क्लाइंट्स, कोचिंग इंडस्ट्री के जितने भी कोचेस से, कंसल्टेंट्स है, दे कैन कम एंड लाइक हम ऐसे क्लोजर प्रोवाइड करेंगे, लाइक यू कैन ग्रो योर रेवेन्यू। दिस इज व्हाट वी आर आल्सो प्लानिंग, दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग कि क्लोजर्स भी अर्न कर पाए। दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग यू गुड रिवॉर्ड एंड गुड इंसेंटिव स्ट्रक्चर, जहां से आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। So what do you think about our incentive structure that you are having right now, and we have created new last month only? So आपका क्या कहना है, कैसा है? Did you like it? अब पता नहीं मुझे ये मतलब फिगर्स रिवील करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेट्स नॉट रिवील द फिगर। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जितना इंसेंटिव मेरे कलीग्स लोगों ने जनरेट किया है, उतने तो मेरे मैनेजर की भी सैलरी नहीं है वहां पर। I like it. I'm just posting this directly कि okay, this will gonna be like कुछ ज्यादा controversy create कर देगा, but that's true. I have seen it personally. People are like, मैंने एज अ क्लोजर उतना पैसा नहीं बनाया, एज अ सीईओ आई कैन सी दैट आई एम वेरी प्राउड। द नेक्स्ट केस स्टडी योर कलीग विल बी सून आउट, जिन्होंने इतना इंसेंटिव बनाया है। सो गाइस, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, अगले ट्यूसडे को बी रेडी, बिकॉज उनकी केस स्टडी इट विल बी धमाकेदार। आई एम जस्ट रिवीलिंग द फिगर, इट्स अ 15 lakhs रेवेन्यू इन अ single month. So, and I'm just happy, Shahid, like the one thing that I like in BCC, like you just clapped for Rajkumar, your colleague, right? Yes, I'm yes, liking that thing कि आप as a sports team हो. So what do you like about BCC? In culture क्या आपको ज्यादा पसंद है? कल्चर बहुत वो फ्रेंडली कल्चर है, प्लस हेल्पिंग नेचर है। हमारे कैप्टन है रोशन सर, जब भी उनको कॉल करो वो जवाब देते हैं। कुछ इश्यू अटक गया है कहीं पर तो मतलब एक कॉन्साइज जवाब देते हैं। पहले मेरा क्या था, जब मैं कॉल कर रहा था स्टार्टिंग में, तो एक वो नेगेटिव माइंडसेट था मेरा, इंडियन कस्टमर से मैं कभी डील नहीं किया हूं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम कॉलिंग फॉर द इंडियन पीपल, तो मैं कुछ ज्यादा ही कॉन्वर्सेशनल हो रहा था। यू कांट बिलीव, 26 मिनट्स का एक कॉल है, मैं 20 मिनट्स कॉल कर रहा हूँ और मैं क्लोजिंग नहीं कर रहा था, मैं खाली जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू द साइकी ऑफ द कस्टमर्स, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इट इज। और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट के ये मैं एक्सपेरिमेंट कर सका। बीपीओ में हमारे वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे फ्री टाइम, मतलब भले से आप अपना टाइम दे रहे हो, लेकिन वहां पर आप 20 मिनट जबरदस्ती की बात नहीं कर सकते हो कस्टमर से। वो टू द पॉइंट करना पड़ेगा आपको, काफी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ेंगे, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओ। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया और फाइंड आउट कि वो जो नेगेटिविटी थी मेरे माइंड में वो धीरे धीरे दूर होने लगी, विच वॉज वेरी गुड। कि मैंने पहले इतना टाइम स्पेंड किया, फिर मैंने रोशन सर से बात किया तो अरे बोले भाई उतना लंबा नहीं घसीटना होता है, खटक बोलो उसको, ये बोलना है और खत्म करो कहानी को। तो ही गिव मी दैट पॉइंटर्स कि भाई यहाँ पे आके इसको उतना एलोंगेट नहीं करना, यहाँ पे कट करो, यहाँ पे कट करो। तो ये मेड काइंड ऑफ अ टेलर मेड द एंटायर थिंग। और सेकेंड थिंग क्या था, यहाँ पर एक्चुअली ईगो नहीं है। right. जो ईगो होना चाहिए होता है ना लोगों में, अगर कोई समवन इज अर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग या किसी ने बहुत ज्यादा क्लोज कर लिया है, तो ही इज लाइक अभी तुम कौन हो भाई, नया बंदे हो, जरा आबादी में बांटो। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं जब आया तो मैं चेक कर रहा था, स्टार्टिंग में ही 2-4 दिन में मैंने राज को कांटेक्ट कर लिया। थोड़ा मस्का भी लगाया राज को, हाय राज हाउ आर यू, ऐसा मैंने आपका, और वो एक्साइटमेंट में मैंने बोल दिया कि वो व्हाट्सएप मैसेज पे कि भाई मैंने आपकी केस स्टडी भी देखी है वैशाली मैम के साथ में। तो उसका रिप्लाई है वैशाली मैम के साथ। मैंने बाद में वापस फिर से गया यूट्यूब पे, बोला रहे सॉरी अर्पित के साथ हाँ जी। उसकी वापस से केस स्टडी शूट करेंगे। कि शायद जी ने भी मेंशन किया जैसे कि उनको एक्सपेरिमेंट करने मिला। So why you get experiment वाला थिंग इज कि हम आपको लीड्स प्रोवाइड करते हैं, यू कैन वर्क ऑन इट। हम अपने पैसे जलाते कि आप एज अ फ्रेशर से एक्सपीरियंस तक का जो जर्नी है आप तय कर पाओ। बिकॉज इफ यू वर्क इन अ बीपीओ और इफ यू वर्क इन अ
like any other organization, I'm not naming them, okay, but वहां भी एक रूल होता है कि ये इतने कॉल्स में से इतने स्टार्टिंग के 2 दिनों में तो हो ही जाने चाहिए, फिर उतनी सेल्स निकालनी चाहिए. सो समटाइम्स आई फील लाइक कि वो बहुत प्रेशराइज हो जाता है. तो ये एक फ्रीडम हमने बैक एंड क्लोजर में बनाई है कि आपको फ्रीडम भी मिले, आप सीख भी पाओ बिना डरे. सो व्हाट डू थिंक अबाउट इट? इज इट अ ग्रेट पार्ट ऑफ बीसीसी? एब्सोल्युटली. टू बी ऑनेस्टली, जब मैं नया नया बीपीओ में लगा था 7-8 साल पहले, उतना डरा के ट्रेनिंग देते, इट्स अ काइंड ऑफ अ फियर बेस्ड ट्रेनिंग दे हैव. Okay. Because yeah, a lot of things are there, a lot of scripts are there, a lot of disclaimers are there, because in the technical team, so a lot of disclaimers के साथ में काम करना पड़ता है. You will never know where you're going to be a kind of a fatal error in your call. So you feel like pressurized every call. I used to shiver, वो बटन दबाना था ना आंसरिंग का, तो I used to shiver like do के आंसर करूं या ना करूं. एक तो अंग्रेजों से पहली बार बात करें, नाइट शिफ्ट है, प्लस इतना सारा प्रेशर है वहां पर. So it was very difficult. I have gone through that pressure. I have every day I was like, I will not be coming tomorrow. I will not be coming tomorrow. But you have to somehow motivate yourself to go to the job, and that's how it started. तो फिर बाद में मुझे जब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रेनिंग का मुझे जब मौका मिला, when you are senior enough, so when new people come in, they look up to you, and they the management asks you to train them so that they can, the learning curve can be reduced, so that they can actually implement the strategies on call and reduce the time and everything, get more service. So my point of teaching to them was, I never kind of a phobia उनको डाला ही नहीं मैंने. मतलब वो मैनेजमेंट जो ट्रेनिंग देके आया है, आपको ट्रेनर ने आपको बताया है, तो आप उसको पॉइंटर्स को ध्यान में रखो, लेकिन आपको जितना फेटल एरर करना है पहले कॉल पे कर लो, दूसरे कॉल पे कर लो, एक हफ्ते में कर लो. मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूं. तो उससे क्या होता है ना, आदमी जब फियरलेसली काम करता है ना, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और उसका जो मोटिवेशन होता है वो कर सकता है. और डर के जब काम करता है आदमी, बीपीओ में डर के ही काम करता है आदमी, वो डर के बारे वो जी नहीं सकता. तो नहीं हो सकता. हाँ, नहीं, वो जबरदस्ती का बना के रखा है उन्होंने कि ये प्रोटोकॉल है और इसको फॉलो ही करना है. मेरा एक फ्रेंड था सर्वोत्तम, वो इतना हेट करता था वो स्क्रिप्ट है ना, होल्ड वाला स्क्रिप्ट. तो उसको वर्बैटम बोलना पड़ता था कि मे आई प्लेस दिस कॉल ऑन होल्ड फॉर 2 to 3 minutes while I check for more information. अरे मतलब ये सब बोलने, वो सर्वोत्तम बोलता ही नहीं था. बोलता नहीं बोलूंगा मैं ऐसा, मैं बोलूंगा आई नीड टाइम, आई नीड टू चेक समथिंग. Yeah, different rules of different organization. हाँ, जो कि वो होल्ड स्क्रिप्ट है वो भी वैसे ही बोलना है जैसे कि उन्होंने कहा है. तो काफी प्रेशर होता है. और बीपीओ में अगर आप उसका हाफ या उसका 25% भी आप बीसीसी में आप यूटिलाइज कर रहे हो, आई एम श्योर कोई मेरे कलीग्स भी देखते होंगे, अभी शायद वीडियो जाएगा तो वो भी देखेंगे. क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, आप किसी को प्लेट में लाके दोगे ना, मैंने अभी अपने 2-4 लोगों को बताया भी, तो दे वर लाइक, अरे यार क्या है मालूम है, ये नहीं चलता है, दिस इज नॉट वर्किंग एवरीथिंग. सो वो उनको मतलब आप सजा के दोगे ना, तो दे विल नॉट रियलाइज द वैल्यू अनलेस एंड अंटिल दे फाइंड देमसेल्फ आउट कि भाई ये क्या हो रहा है, then only they will get into it. So I hope after watching this, I'm sure they will be able to. मैं share करूँगा उनके साथ. Sure, share it with them and like let them realize कि they are missing something, they are missing the opportunity. They need to grab the opportunity, otherwise lose हो जाएगा. There's a one quote that मुझे पता चला था during the time of COVID कि like I've joined network marketing that time, like जब COVID शुरू हुआ था. तो बहती गंगा में हाथ धोना बहुत अच्छी बात है. मतलब अभी बहुत अच्छा पीरियड शुरू हुआ है. बैक एंड क्लोज इज जस्ट लाइक 1.5 year हुआ है and we have generated more than 3.4 crores revenue. So अगर आप अभी स्टार्टिंग से पार्ट हो, आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है that we have shared like the soft and all. So guys, if you are watching this, do not miss the opportunity and see your fellow colleague member is achieving lot and lot success. So I wanted to know Shahid कि बैक एंड क्लोजर में अभी जो 2 महीने हुए, उसमें सबसे बड़ा वाव मोमेंट, एक आहा मोमेंट आपके हिसाब से क्या था कि आप हमेशा वो मतलब चेरिश करते रहोगे कि यस ये मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा? मोमेंट वही था मेरा, जो हिमांशु सर के साथ में जो मेरा जो
फर्स्ट मीटिंग लिया था उन्होंने, तो वहां पे जो सेल्स का उन्होंने मिथ्स तोड़ा था, वो मेरे लिए सबसे आहा मोमेंट रहेगा, क्योंकि मनी से कभी आएगा कभी जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो आपका माइंडसेट चेंज होता है सेल्स के बारे में, क्योंकि इवन दो आई एम फ्रॉम बीपीओ एंड वो सेलिंग हमारा केपीआई था, केआरए था, सब कुछ था, लेकिन सेल्स को मैं सामने से नहीं करता। राइट। आप मेरे को अभी बोलोगे सेल्स करना है, हाँ किससे करना है, मुझे प्रोजेक्ट भी नहीं पता होगा, प्रोडक्ट भी नहीं पता होगा, फिर भी आप बोलोगे ना इसको कॉल करके पूछ क्या नीड है, मैं कॉल कर लूंगा सामने से। जो रिलक्टेंस था ना, कॉल रिलक्टेंस सेल्स का, वो मेरे में से चला गया। अब मेरे को बोलोगे रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट बेचना, मैं बेच लूंगा। ग्रेट, करना दैट क्या था आपको बताना है, कॉन्फिडेंस इज वो स्क्वायर अमेजिंग। फीट का एरिया बताना है, वहां ये है, ये फैसिलिटी है, दैट्स इट। कितना इजी हो गया मेरे लिए, पूरी दुनिया खुल गई है मेरे लिए। दैट्स रियली अमेजिंग। सो लाइक दैट्स ग्रेट थिंग कि आपने नई नई चीजें सीखी एंड आप बैक एंड क्लोजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी हो। सो कोई 3 चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है बैक एंड क्लोजर्स में? 3 चीज तो सबसे पहली है यहाँ का जो प्रेशर नहीं है। आदमी आधा तो वहीं मर जाता है प्रेशर में, जो फ्रेशर होता है वो प्रेशर में मर जाता है। राइट। क्योंकि हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट में भी है ना, 100 पीपल डाई अंडर प्रेशर। राइट। तो वो आप वो नए बंदे को वो टाइम मिलता है वहां पे जो एक्सपेरिमेंट करने का, जो खुद के अंदर जो डेवलप करना है उसको स्किल, ही इज गेटिंग द टाइम। अगर वो 2 घंटे ही कॉल, अभी कोई नॉर्मल बीपीओ ज्वाइन कर लो या कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लो, तो वहां पे 9 आवर्स यू हैव टू वर्क। यहाँ पे 9 आवर्स तो नहीं करना है आपको। आप सीखो 3 घंटा, 3 घंटा कॉलिंग करो, 1 घंटा कॉलिंग करो, उसको ही उसमें आप लर्निंग दिखाओ अपनी। आपको कोई और गाइड नहीं करेगा, आप खुद के कॉल सुनोगे तो यू विल नो कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। अगर कोई एक्सपर्ट उसमें चाहिए, उसमें एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो योर कैप्टन आर देयर, योर कलीग टीम मेंबर्स आर देयर, तो आप उससे शेयर करके उनसे सीख सकते हो। और कुछ नहीं तो कुछ अपने कॉल रिकॉर्डिंग्स तो पड़े ही हैं। थोड़ा डीमोटिवेट होता है तो वो कॉल उठा के सुन लो, तो भाई हाँ ये रोशन सर ने ऐसे लिया था, श्रुति मैम ने ऐसे लिया था, या वैभव हुआ, सौरव हो गया, राज का हो गया, तो आप यू कैन लिसन टू अदर पीपल्स कॉल। आपके लिए वो नहीं है कि आपका भाई यहाँ पे 2 घंटा फिक्स हो गया तो आपको 2 घंटा ही कॉल करना है। नहीं भाई, 1 घंटे में आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो 15 मिनट का ब्रेक लो, कॉल सुनो, मोटिवेट हो, फिर से आ जाओ जॉब पे। तो दिस इज द बेस्ट थिंग, द प्रेशर बिल्कुल नहीं है। सेकेंड, जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मनी पार्ट, ऑसम मनी पार्ट है जो आपको मोटिवेट करेगा, कि आपको अंदर से फील आएगा कि नहीं भाई अभी अगले महीने में थोड़ा ज्यादा करता हूँ, अगले महीने में थोड़ा ज्यादा करता हूँ, तो वो मोटिवेशन विल बी देयर फ्रॉम विद इन। कोई आपको एक्सट्रिंसिक नहीं रहेगा, बाहर से कोई प्रेशर नहीं कर रहा है भाई आप कॉल ले ले तो तू कमाएगा, नहीं भाई, जितना ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा तेरा अर्निंग होगा। और सेकेंडली जो लास्ट पार्ट है, जो तीसरा वाला है, वो मार्जिन पे खेलने वाला, वो पॉइंट में अवेयर ही नहीं था उसमें। कि बाद में वो एक्चुअली मैंने वो बुक भी पढ़ा, तो उसके अंदर मुझे पता चला कि लॉ ऑफ एवरेजेस में आप खेल सकते हो। भले आपको सेल्स का कुछ नहीं आता है, खाली आप नंबर ऑफ कॉल्स घुमा दो, आप 200-300 कॉल कर लो, एक तो सेल हो ही जाएगा उसमें, 2-3। राइट। तो वो लॉ ऑफ एवरेजेस वाला कभी मतलब सेल्स को उस नजरिए से देखा ही नहीं था मैंने। अगर आप मेरे को बोलोगे टेक्निकल, मैंने बहुत कुछ कर लिया था, ऐसा ऐसा पढ़ लूंगा, मुझे ये बताओ ये करना है वो करना है, लेकिन सेल्स के बारे में अरे उसको लुक डाउन करता था मैं। तो कम से कम इतने बड़े प्रोफेशन को मैं लुक डाउन कर रहा था, वो मेरी गलती थी। और मैं यहाँ पे आने के बाद में वो मेरा माइंडसेट, मैंने उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया। ग्रेट। सो एनी एडवाइस जो आप देना चाहोगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या पता बहुत सारे बीपीओ वर्कर्स देख रहे होंगे, कलीग्स देख रहे होंगे आपके, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, आप क्या बोलना चाहोगे कि सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बैक एंड क्लोजर क्यों इंपॉर्टेंट है? नहीं भाई, मैं तो एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, भाई मत ज्वाइन करो, अभी मैं थोड़ा ग्रो हो जाऊं उसके बाद आप मेरे अंडर आना, वरना ये लोग आके मेरे ऊपर हो जाएंगे। गुड थिंग, मैं कैप्टन बन जाता हूँ, फिर एक बीपीओ की हम से बैक एंड क्लोजर में टीम बना लेंगे। हाँ हाँ, ग्रेट। नहीं एक्चुअली क्या है कि वो उनको वो आएंगे नहीं अभी, वो आएंगे कब मालूम है, जब उनको अपने आप से लगेगा। तो उनको अपने आप से लगने के लिए दे विल स्पेंड सम टाइम, उसके बाद में आप वो देखेंगे धीरे धीरे आएंगे। और मेरा एक ही मतलब ये थोड़ा स्क्रिप्टेड हो जाएगा, मैं बोलूंगा आ जाओ बहुत अच्छा है ना, बिग बॉस टाइप हो जाएगा ये। देखो हर चीज I का like अपना, the honesty. I like the honesty. तो ये है ना, सबका अपना अपना स्ट्रगल है। आप आओगे, ऐसा नहीं कि आए और वैशाली मैम आपके लिए चेक लेके खड़ी है भाई
तेरा नाम क्या है, शाहिद अंसारी, कितना चाहिए खुद लिख ले, ले भाई डिपॉजिट कर ले या जीपे दे दे, तेरा हम लोग मनी ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो नए बंदे होते हैं सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं, क्योंकि मैं काफी सेमिनार्स जो अटेंड होते हैं ना आजकल, वेबिनार्स हर जगह वेबिनार ही वेबिनार हो रहे हैं, राइट। मैं उसमें देख रहा हूँ सभी अटेंड कर रहे हैं, उसके अंदर 500 600 700 लोग आ रहे हैं अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद में और जो एंड में जो कोर्स खरीद रहे हैं वो बहुत कम लोग खरीद रहे हैं। राइट। तो पीपल आर स्केप्टिक, मतलब वो 100 200 रुपए तक ही वो अपने आप को लिमिट करना चाहते हैं कि भाई मैं इतना ही खर्च करूंगा, उसके बाद में कुछ होगा नहीं होगा, या फिर उनको पूरा चाहिए वो तो फ्री में चाहिए। और अगर आप फ्री में भी दे दोगे तो बोलेंगे मेरे को ऐसा नहीं था, ऐसा चाहिए था। तो ऐसा वैल्यू नहीं है। तो हाँ, तो आप आओ, देखो, मेहनत करो, और कोई भी काम हो, बैक एंड क्लोजर में आना है या कहीं भी जाना है, एटलीस्ट गिव योरसेल्फ टाइम, 3 महीने तो दो कम से कम। राइट। अगर आप वो टाइम नहीं दोगे, क्योंकि मेरा इतना पुराना बिलीफ था इंडियन कस्टमर को मैं सेल ही नहीं कर सकता हूं, अगर वो भले से मेरे को हिमांशु सर डायरेक्टली ट्रेनिंग दे देते, लेकिन अगर वो मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा धीरे धीरे करके, तो मैं सेल्स नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा एक ही एडवाइस रहेगा, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, ग्रेट थिंग। अगर आपके अंदर वो ताकत है, कुवत है, जो पोटेंशियल है, अगर आप आके, वो पेट्रोल कहाँ निकलता है, जमीन के अंदर निकलता है, राइट। वो भी मट्टी ही होती है, यू कांट डिफरेंशिएट। अगर उसको कोई एक्सपर्टीज आके मशीन से चेक करता है तो बताता है भाई यहाँ पे फॉसिल फ्यूल है, यहाँ पे कोयला बनेगा, ऊपर से देखेंगे तो वो बंजर जमीन ही होता है। तो अगर आपके अंदर वो बंजर जमीन को खोदने की ताकत है, अंदर डायमंड है, जैसे कि स्ट्रेंजर सीक्रेट में बताया गया, यू आर सिटिंग ऑन योर एकर ऑफ डायमंड। अब वो डायमंड में आपको खोदना पड़ेगा। आप सोचोगे कि सबको बना बनाया मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मिथ खत्म ही कर दो, क्योंकि सर ने हमको ये सिखा दिया है कि भाई नेक्स्ट, आप नहीं आओगे तो कोई नेक्स्ट आएगा ही। तो हम आप पे रिप्लेस, लाइक एवरीवन इज हैविंग देयर ओन रिप्लेसमेंट। अगर आज मैं काम नहीं करूंगी, मेरा भी कोई रिप्लेसमेंट होगा, आप नहीं करोगे, आपका भी कोई रिप्लेसमेंट होगा। राइट। और नहीं, आपके पास वो एफर्ट होना चाहिए ना, कि भाई वो खड्डा करके अंदर ही पानी मिलेगा मेरे को। आप बोलोगे कि मैं जाऊं वहां पर बिस्लरी की बोतल रखी है, मैं उंडेल के पी लूं, ऐसा नहीं होगा। सो इट्स अ स्ट्रगल। आपको ये रिमेंबर करना है कि मनी इज ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। सो व्हेन यू प्रोवाइड द सर्विसेज, देन ओनली यू विल गेट। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बैठे बैठे सोचने से नहीं होता है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको लॉ ऑफ एक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। व्हेन यू टेक द मैसिव एक्शन, वो मैसिव रिजल्ट आएगा। अगर वो, इवन सर ने कहा है ना, जैसे कि एक्शन जो स्पीड होती है, वो दैट डिफाइज द ग्रेविटी, दैट इज द ओनली थिंग, स्पीड इज द ओनली थिंग दैट डिफाइज द ग्रेविटी। तो आप वो हिसाब से काम करोगे तो प्लीज कम हियर, यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप आके सिर्फ एक्सपीरियंस करो, देन ओनली यू विल रियलाइज। और आपका अपना स्ट्रगल होगा, उसमें भी आपकी अपनी लर्निंग्स होगी। इफ यू आर रेडी टू पुट इन द वर्क, इफ यू आर रेडी टू पुट इन द टाइम, इफ यू थिंक यू वांट टू मेक बिग इन लाइफ। क्योंकि अभी वो जतन शाह के सर के साथ जो प्रोडक्ट है उसका मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले तक तो मैं सिर्फ एड ही देख रहा था उनके। इनफैक्ट मैंने 299 का उनका प्रोग्राम लेके एक्सेल भी किया हुआ है। ओके। और इट वाज काइंड ऑफ अ ग्रेट थिंग, लाइक यू नो, किसी को यूट्यूब पे देखो, किसी का एड देखो, अब उनकी टीम में काम कर रहे हो, इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ कनेक्ट ऑल टुगेदर। ग्रेट। सो अभी जैसे कि I know you are just spending around 5 hours per week, like rarely 5 hours per week. Then बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट है, अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, लाइक कि मैम मेरे पास टाइम नहीं होता, देन वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, देन फिर वो मूड में नहीं आते, मोटिवेशन चला जाता है, एंड दे आर लाइक कि मैम अब नहीं हो रहा है, लाइक आई वांट टू लीव। सो व्हाट एडवाइस यू वुड like to give to back end closers who are like कि नहीं consistency follow नहीं होती है, like you are just putting your 12 hours code in, then you are spending 1 hour in BCC. One advice for them. कंसिस्टेंसी आपको आएगी आपके स्ट्रगल से। अगर आपने कोई चीज देखा है ना, जैसे कि मैंने देखा है बीपीओ में, मैं इतने सारे कॉल लेके इतना सारा पैरामीटर करके उसके बाद में आई गेट द सैलरी व्हाट एवर इट इज, आई हैव सीन द स्ट्रगल। एक्चुअली मैं आपका एक एग्जांपल देता हूं। अभी माय ब्रदर इज इन कतर, ठीक है। सो ही इज बीन देयर फॉर लास्ट 10-12 years, वहां पे काम कर रहा है, और उसने किसी को बुलाया नहीं वहां पे। तो अभी एक मेरा कजन था, ही वाज लाइक अरे भाई वहां पर है, ही इज नॉट कॉलिंग अस, ये वो। उसका जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, ठीक है।
तो अभी ये मेरा भाई वहां से ही इज शिफ्टिंग बैक टू इंडिया, ठीक है। तो उसने एक सोचा कि ये इतना फोर्स कर रहा है, इसको सेटल कर देते हैं, कुछ ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं लोग। और उसने उसको वहां पे फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे विजिट वीजा पे बुला लिया, ठीक है। नॉट द जॉब, ओनली फॉर विजिट, के भाई इधर आ, मेरे पैसे पे आ जा तू, और यहाँ पे जॉब मैं तेरे को दिला देता हूँ, देन अकॉर्डिंगली 3 महीने में तू कर ले, देन यू विल बी गुड टू गो। वो बंदा वहां पे 2 लाख रुपए का वीजा निकाला गया, प्लस उसका रहने का इंतजाम किया गया, सब कुछ किया गया। ही वॉज अ फ्रेशर, ठीक है। उसको वहां पे जॉब दिलाया गया, और वो ही वॉज डूइंग, विद इन अ मंथ ही केम बैक। ही वॉज लाइक नहीं मुझे काम नहीं करना है, मुझे ये नहीं जम रहा है, मुझे वो नहीं जम रहा है, मुझे ये नहीं करना है। एंड ही सेड कि भाई कर ले। उसको 15 दिन उसको मोटिवेट किए, बट स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट, और ही केम बैक आफ्टर 4 लाख रुपए का नुकसान करके। ही केम बैक। तो माई एडवाइस टू ऑल द पीपल जिनको स्ट्रगल देखा नहीं है, अगर वो इंडिया में काम किया होता था 10,000 रुपए के लिए, वो पूरा ट्रेन में चढ़ के जाता था, आता था, देन ही नोज द स्ट्रगल, देन ओनली दे विल वैल्यू। अगर आप को स्ट्रगल नहीं किया है आपने, तो आपको ना तो कंसिस्टेंसी आएगी, ना आपको वो 10,000 जो कमा रहे हैं ना, यहाँ पे बैठ के अगर मैं 10,000 भी कमा रहा हूं ना, तो मेरे लिए ना वो इजी मनी है, कंपेयर टू आई एम गोइंग टू ऑफिस एंड उसका 9 घंटे मेरे बॉस का कहानी सुनना है, वहां पर ऑफिस पॉलिटिक्स भी है एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद में मेरे को 15,000 रुपए मिल रहे हैं। तो मेरा एक ही जो एडवाइस रहेगी फॉर दोस्त पीपल जो नए हैं, स्टूडेंट है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए आप अपना स्ट्रगल याद करो, और कंपेयर दैट स्ट्रगल टू द ईज दैट वी हैव इन बीसीसी, यू विल बी माइंड ब्लोन। अगर आपको डायरेक्टली बीसीसी मिला है तो यू विल नॉट वैल्यू इट, आई एम श्योर। Right. I do agree. Like the people who got in the starting, like for free of cost, like right now to like through LinkedIn, through Instagram, right now we are growing. So I got a lot of messages from YouTube, like from Instagram, sorry. They are like कि मैं free में करा दूँ. I'm like हम free में नहीं देते opportunity अब, क्योंकि you will be not valuing the same. Like if you are charging a minimum amount of 5,000 rupees to, you will be like, oh, I can't pay. I'm like, then don't come. Because if you are not paying 5,000, you will be like कि मेरा कुछ लगा ही नहीं है, तो मैं क्यों कॉल्स पे इतनी मेहनत करूं, मैं क्यों उसके पैसे के लिए काम करूं। So we charge because you are having a first goal कि एटलीस्ट जो 5,000 इन्वेस्ट करे वो 5,000 लेके तो आ जाए बाहर। That's what we are also thinking. And we had a good time with Shahid. Like we got to know about lot of things. I would like to ask one thing, Shahid. आपकी एज अभी क्या है? Like ये पूछना नहीं चाहिए, but आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है बीपीओ का. So I am curious to know आपकी एज क्या है अभी? And because that maturity comes with the age, with experience and lot of struggle. So अभी बैक एंड क्लोजर में भी बहुत सारे पर्सन है, लाइक विनीत जी है जो मोर देन 53 के है. सो लाइक आपकी एज क्या है, आप कैसे काम कर रहे हो, एंड क्या आप एक चीज बताना चाहेंगे हमारे लिए? श्योर एक्चुअली वो किसी ने बताया ना कि वो सैलरी, मेंस की सैलरी नहीं पूछते तो मैं बता देता हूँ, एक्चुअली मैं शक्ल से लगता नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली आई एम 40 years old. Oh, great. 40 years and working in BCC, great. चलो बहुत अच्छी बात है. So just अभी तो बस सेलर एफ आई वांट कि अगले महीने डॉलर क्लोजर एफ बन जाओ, उसके अगले महीने हैशटैग रीच एफ बन जाओ, जल्दी महीने का 50,000 और 1 लाख रुपए कमाओ, ताकि वापिस से हम केस स्टडी शूट कर पाए एंड वापिस से और भी डिटेल में जान पाए बीपीओ के बारे में, बीसीसी के बारे में, एंड योर लर्निंग्स एंड ऑल. So great. Thank you for sharing all the advices and your point of view about back-end closes. And guys, if you like the case study, please share your learnings on the comment box and share this video with your any BPO friend, your sales team. Let them understand कि BPO से ज़्यादा back-end closes doing well and they are happy in the back-end closes. If anyone wants to join back-end closes, you can comment over here and there is a link in the description. You can fill out the Google form and you can reach out to us. Our back-end closes team will reach out to you to join the team. Thank you.